ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने हमारे साथ साझा किया है। शुक्राना गुरुजी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जननी गुरु जी के साथ 2022 च शुरू हुई। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे सी, कुड़िए शुकराना सत्संग शेयर कर, शुकराना कर। गुरु जी दे ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਜਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਤਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਅਣਜਾਣ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਵੀ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਤਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਸ ਦਾਰੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਰੂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ 22 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ
ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਬਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਆ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸੰਧੂਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੰਧੂਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੰਧੂਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਲਈਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾ, ਵੀ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਰੀ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਹੀਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम तो शेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं हापुड़ यूपी से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। और मैं सत्संग की शुरुआत पहले गुरु जी के जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये पहला सत्संग है, तो जो भी भूल चूक हो तो प्लीज़ संगत जी माफ़ करना, क्योंकि अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे करते हैं। आगे गुरुजी जैसे सत्संग शेयर करवाएंगे वैसे करूँगी। तो मैं ये बताना चाहती थी कि मैं अभी दिसंबर लास्ट 2023 से गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ है। मेरे घर के पास एक क्षमा आंटी रहती हैं, तो मैं अक्सर उनके मंदिर में गुरुजी की तस्वीर देखा करती थी और बड़ा अच्छा सा सुकून होता था। देखती थी कि कैसे हैं ये गुरुजी, कौन है, कैसे हैं, क्या है। मन में क्वेश्चन चलते रहते थे, पर कभी उनसे कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, बस बातें अपने मन में ही रख के आ जाती थी। फिर एक दिन गुरुजी क्या हुआ, संगत जी
हमारे क्षमा आंटी का मेरे पास कॉल आता है कि तुम चल रही हो हमारे वहीं हापुड़ शहर में एक संगत जी के घर अमृत वर्षा और शहद वर्षा हुई थी। बोली देखने चलोगी गुरुजी की? मैंने कहा चलो। तो मैं वहाँ गई, मैंने अपनी आंखों से अमृत वर्षा शहद वर्षा गुरुजी की देखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ी खुशी हुई मन में। वहाँ से जल प्रसादी भी लिया, लंगर भी चखा और उस दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैंने घर पे ला के मंदिर में रख दिया। लेकिन मैं चंडी जी को बहुत मानती हूँ, तो मेरे मन में ये आया कि मैं ये गुरुजी का स्वरूप ले तो आई, अब मैं इनकी पूजा करूँगी, लेकिन मेरी इष्ट तो चंडी जी हैं, तो पता नहीं कैसे क्या होगा। मन में ऐसे ही चलती रही, डाउटफुल रही मैं बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, शाम को ही जैसे मैंने व्हाट्सअप इंस्टा करा, तो मुझे पहले भी गुरुजी के मैसेज आते थे, पर मैं देखती थी, कुछ करती नहीं थी, बस लाइक कर दिया करती थी। तो फिर मेरे को एकदम मैसेज आया कि तू परेशान मत हो, मैं तेरी माता में ही तुझे दिखाई दूंगा, तू ठाकुर जी सेवा कर दी है, मैं तेरे को ठाकुर जी की सेवा में ही दर्शन दूंगा, माता जी तेरी माता रानी और मैं ही तेरे घर का कल्याण करेंगे। गुरुजी, फिर मेरा ये मन का भ्रम भी निकल गया। और गुरुजी, संगत जी, जब से मेरे जीवन में गुरुजी आए हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग दी हैं। मैं दिल्ली बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ और गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि हफ्ते में 2 बार मैं बड़े मंदिर हुई आई मार्च में, और दोनों बार ही मुझे गुरुजी के वहाँ से ब्लेसिंग मिली हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जहाँ ऑफिस में मेरा मतलब जॉब करती हूँ, मेरे वहाँ पे ऑफिस में एक संजय अंकल हैं, उनकी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया था अभी 2 मार्च 2024 को। और संगत जी, वो ब्रेन हेमरेज के उससे वेंटिलेटर पे चली गई, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर भी डॉक्टरों ने उन्हें एक बार रूम में शिफ्ट करा। तो वो संजय अंकल बहुत परेशान हो रहे थे कि मम्मी बोल नहीं रही हैं, चाल नहीं रही हैं। तभी मेरा प्रोग्राम था मंडे, अभी लास्ट मंडे जाने का, कि हम बड़े मंदिर होके आएंगे। तो मैंने उनसे अंकल से कहा मैं आपको जल प्रसादी ला के दूंगी बड़े मंदिर से, आप गुरुजी का ब्लेसिंग दूंगी, आप आंटी को पिलाना। और संजय अंकल की मम्मी को मैंने जल ला के दिया। मैं उन्हें हॉस्पिटल में देखने गई, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मेरे साथ आए हैं और इन्हें ब्लेस करना। और संगत जी, आज वो अपने घर कल ही छुट्टी लेकर आ गई हैं, सब ठीक ठाक है, बोलने लग गई हैं, सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। और भी मेरे जीवन में घर में छोटी मोटी कुछ टेंशन चलनी थी, लेकिन उन टेंशनों से मैं ऐसे निकली हूँ कि मुझे पता नहीं, मेरे गुरुदेव ही मेरा हाथ पकड़ा के निकल रहे थे। तो गुरुजी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर मुझ पे बनाए रखना, सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, मेरे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा रखना। और संगत जी, हो सका तो मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिलती हैं, और बहुत जल्दी गुरु जी जो मेरे मन में चल रहा है उसे भी मेरा पूरा करेंगे। और मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मैं गुरु जी से सन 2018 में से जुड़ी हूँ। पता नहीं कब तक जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं एक अटेंडेंट के काम करती हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ यदि गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत लोग, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं जब जुड़ी हूँ तो मेरे परिवार वाले विश्वास नहीं करते हैं,
पर गुरु जी की मेहर है कि मैं यहाँ जुड़ी थी। तो जो माता जी को मैं देखभाल करती हूँ, उनकी बेटी माला दीदी गुरु जी की संगत है। वो मेरे को बोली, मैंने पूछा कि ये कौन है, तो बोले गुरु जी हैं। पर मुझे नहीं पता मेरे को कैसे विश्वास हो गया, अंदर ही अंदर मैं इनसे जुड़ गई। कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना इनका पूजा पाठ कर पाती हूँ, ना नियम से कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर मैसेज मेरे को आता है। तो चिंता ना कर, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हाथ पकड़ रखा हूँ। ये मेरी प्यारी संगत, मैं अपने गुरु जी को जितनी भी बड़ाई करूँ कम है। मुझे नहीं आता मैं क्या गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। जब मैं जुड़ी थी तो मेरा लड़का एक टेंट का काम करता था, उसका काम ठप पड़ गया बिल्कुल। दूसरे लोगों ने नाजायज फायदा उठा लिया। तो मेरे घर में बोले कि जब से गुरु जी आए हैं, जब से ये नुकसान हो रहा। मैं बोली कि गुरु जी बोले थे कि तुम ऐसा काम करो, गुरु जी ने आपको अच्छे बुरे से बचाया है, बिजनेस ठप पड़ गया, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा। उसके बाद मैं तो विश्वास करती हूँ, संगत शिव पुराण भी कभी पढ़ लेती हूँ, गुरु जी का वाणी भी सुनती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, शांति मिलती है। पर मेरे घर परिवार वाले नहीं विश्वास करते हैं, ना मेरे पति ना मेरे बच्चे। भगवान को मानते हैं पर गुरु को नहीं मानते हैं। पर मुझे विश्वास है कि एक दिन ये भी मान जाएंगे गुरु। मैं क्या आपसे कहूँ, मेरे को कुछ नहीं आता बोलने। इतनी बड़ी बड़ी संकट से मेरे गुरुजी ने बचाया। मेरा आदमी को हार्ट अटैक आ गया अचानक, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। जब मैं गई हॉस्पिटल में तो इनको चिंता हो गया कि अब क्या होगा, पर मेरे को विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने रास्ता निकाल देंगे। प्यारी संगत, गुरुजी ने कहाँ से 4-5 लाख रुपया इकट्ठा करवा दिया मुझे नहीं पता। और मेरे पति को मैंने स्टेंट लगवा कर दवाई ववाई करा के मैं भर रही हूँ, पर ग्रह से बहुत टाला। पर मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता कि गुरुजी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ग्रहों से टाल हमारे बुरे कर्म कैसे काटते हैं। मुझे तो विश्वास है पर बच्चों पति को नहीं विश्वास है, पर मेरे गुरुजी मेरे साथ हमेशा है, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। मैसेज आती है, मैं पढ़ती हूँ, जो भी समझ में आता है मैं करती हूँ। पर हे प्यारी संगत, मैं शुक्राना सत्संग कर रही। जब मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं शादी करने के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे एक बेटा है। पति काम नहीं करते, बैठे हैं बीमारी की वजह से। पर मुझे विश्वास है कि मेरा इज्जत मेरा लाज रखेंगे। उस दिन मैं एक बड़ा सत्संग कराऊंगी, आपको शुक्राना सत्संग पे दोबारा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, लख लख शुक्राना। प्यारी संगत, मेरे को संगत करने में सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना इस नासमझ को, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ गुरु के अलावा कोई हाथ नहीं है। कोई ना मुझे बताने वाला है न कुछ करना, बस गुरु जी मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी चीज़ का गम नहीं। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव हर टाइम मेरे साथ है। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत, आपको शुक्राना। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का कोई अरदास जब पूरी होती है तो उस सत्संग के रूप में से सुनाया जाता है, उससे शुक्राना किया जाता है। गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी की थी तो मैं बड़े मंदिर में गुरु जी को शुक्राना बोलकर आई थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि गुरु जी की जब अरदास पूरी करते हैं तो उनका सत्संग करके भी उनको शुक्राना किया जाता है। तो इसलिए मैं सत्संग के द्वारा शुक्राना कर रही हूँ। मैं सितंबर में गुरु जी 2023 में गई थी। वहाँ पर जाकर मैंने गुरु जी को देखकर कहा, हे गुरु जी, आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। और बड़ी ही उम्मीद लेकर मैं आई हूँ। गुरु जी की तरफ मैंने देखा, एक चिंता सी थी मन में बहुत ज़्यादा
क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरफ से मुझे चिंता थी, जो मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। मैं चाहती थी कि इससे बेटा हो, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से थोड़ी सी मुझे टेंशन रहती थी। और बेटी बताती थी कि कई बार कि मम्मी इसकी सास उसे बोलती है कि तेरा ऑपरेशन होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, मतलब एक तरीके से इसको टॉर्चर करती थी। बेटी मुझे बताती तो मेरी चिंता बढ़ जाती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी महाराज मेरी बेटी को, वैसे तो खैर बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आजकल समाज में अगर जिसको बेटा हो जाए तो उसका बेटे का मान सम्मान बढ़ जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी को बेटा हो और ऑपरेशन भी ना हो, तो गुरुजी महाराज कृपा करना। तो गुरुजी महाराज ने दोनों ही कृपा करी, बेटी को बेटा भी दिया और बिना ऑपरेशन की भी मेरे बेटी को लड़का हो गया। तो गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हे गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ कर रखा है, ऐसा आगे भी पकड़ कर रखेंगे और हमें कहीं और नहीं भटकने देंगे। बस अपने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करना है, एक मन में अजीब सा लग रहा है, किस तरह सही है या नहीं गलत है। तो मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं पहली बार इस सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना आज करने जा रही हूँ। मैं 4-5 साल पहले अपनी फ्रेंड के साथ आंटी जी के साथ गुरु दरबार में आई थी। उसके बाद 4-5 साल मैं नहीं गई और अचानक ही मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे को सब ने कहा कि वहाँ जाकर लोटा ब्लेस करवा के ला, और मैंने लोटा ब्लेस करवाई। संगत जी, ब्लेस करवा के आई, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आई लोटे में। और मैंने अपने अंकल जी को वो जल पिलाया भी और नहलाया भी। पहले उनको कोई दवाई नहीं लग रही थी, वो ना ही खा रहे थे और ना ही चल पा रहे थे। जब गुरुजी की ब्लेसिंग लोटे में मैं लेके आई, तब से उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू किया और खाना पीना शुरू किया और थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, और धीरे धीरे जो दवाइयाँ थी वो लगने लग गई। और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी जो हैं पूरी तरह से ठीक हो गए। और मैं इसलिए गुरुजी को शुक्राना बार बार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरी कोई भूल चुको माफ़ करना संगत जी। मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता। बहुत दिनों के बाद सोच के गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती। मेरे को शुक्राना शेयर का मतलब नहीं था, मैं उस पर लिख देती थी कमेंट्स में शुक्राना गुरुजी। बाद में किसी तरह से पता चला कि शुक्राना जो है इस प्रकार करते हैं ताकि दूसरी संगत भी जो है शुक्राना सत्संग सुन सके और लाभ उठा सके। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं कई चीज़ें गलत बोल गई होंगी, मुझे पता नहीं है, और आप उनको माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।